Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to do the management of type 2 diabetes mellitus. From preconception, in the three point of view is not so much important. Only we have to know that because she is type 2 diabetes, so it means she has discovered case of diabetes. So if it is a discovered case because it is in the recently discovered or it discovers from 3-4 years it's discovered, and she is taking the treatment, maybe metformin, any hypoglycemic agent she is taking, or she is on insulin. So these two can be happen, but there is another one, the type 1. Type 1 is never very rare, it can be controlled with medication. Mostly these are the insulin dependent. So there is a difference. Type 1 is insulin dependent, and type 2 maybe it has to be medical treatment, and it can be insulin dependent. Not insulin dependent means on insulin is the treatment. So this is the difference. So preconceptional, she has to come if she want to be get pregnant, and we have to do all the checkup. All the checkup from means head to toe. Checkup means we have to check for her eyes, cardiovascular system, thyroid, okay, neuropathy, and then urological assessment we have to do. So the same. So if she is okay, then she will go for the pregnancy. This it is only this one, we don't need more than that. Okay, until the blood sugar is controlled, she has to take the contraception. Okay, contraception, mostly they have to take the contraception is LARC. Okay, long acting Okay. reversible, this one drugs she has to take it. Okay, contraceptive, Okay. she has to take that one. That's enough, we will not do more than that one. Okay. 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 See, she has to. Sorry, I forget one thing also here. They have to be. She has to educate. The same story when we are doing the pregnancy antenatal care. The same story we will add it here. We have to inform to her the husband or the partner or the family. We have to educate them that if she will get hyperglycemia or hypoglycemia, what will happen, and then what is the most important, she has to have a kit for the ketone. Okay, that's all, no more than that. Now we'll come to the main our main topic. Okay, one second, where it, this is the one, antenatal care. So here what we have to do in the antenatal care, any patient will come for the pregnancy, again the same in the antenatal. First we have to confirm her pregnancy, that she is pregnant or not. Okay, and she has to be managed by the consultant endocrinologist multidisciplinary team. So it will consist of the diabetic nurse, consultant obstetrician, and the diabetic care doctor in the pregnancy. Diabetic means endocrinologist or diabeticians. This is the one they have to do, and she has to make most of the clinic follow-ups in the diabetic clinic. Okay, she has to combine diabetic and antenatal care clinic combined. Okay, she has to make a combine. Okay, the same story, she has to be, if she is an early trimester, we have to commence 5 milligram folic acid. Please don't forget folic acid 5 milligram she has to take. Now vitamin D, please. आई थिंक योर फ़ोन आपका। ओके। जी 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 हाँ, आप सुन लें जब तक मैं कर रही हूँ। जी 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 मैं आपका वेट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं। जी डॉक्टर रशीदा। ओके जी। चले फिर, अब क्या है इसमें, देखें डॉक्टर साहब, ये बहुत सारी स्टोरी, मिलती जुलती स्टोरी है टाइप गैस्टेशनल डायबिटिक के।
टाइप 1 की भी द सेम स्टोरी है, बस थोड़ा फ़र्क है, तो इसलिए मैंने कहा वो मैं खुद ही डाल दूँगी। अब इसमें क्या होता है कि एंटीनेटल हम क्या करेंगे, 5 मिलीग्राम फॉलिक एसिड देंगे, विटामिन डी देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो नई गाइडलाइंस जितनी भी है ना, नई न्यू तो नहीं है, 1-2 जी साल से ये क्या कर रहे हैं, विटामिन डी हर पेशेंट को देते हैं, ठीक है। जी फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम और विटामिन डी 10 आई थिंक 10 मिलीग्राम और माइक्रोग्राम, फिगर मुझे याद नहीं होती है, मैं देख के फिर डाल जी दूँगी इसमें। जब टाइप 1 जी जी डायबिटीज़ करेंगे ना तो उसमें कर दूँगी। अच्छा जी, उसके जो विज़िट होंगे, एंटीनेटल विज़िट वही 2 to 3 वीक होंगे, और एवरी विज़िट में हमने उसको देखना है, ब्लड प्रेशर हमने चेक करना, उसका वेट चेक करना और यूरिन एनालिसिस देखनी है हमने एवरी विज़िट पे। क्यों? क्योंकि दे हैव अ हाई रिस्क ऑफ द हाइपरटेंशन। ओके जी। और जब भी वो आएगी तो हमने उससे पूछना है तुम्हारे फीटल मूवमेंट इज़ ओके। और दूसरी चीज़ हमने पेशेंट से हमेशा पूछनी है कि तुम्हें लोअर अब्डोमिनल पेन तो नहीं है, कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, जी क्योंकि फॉर द प्री टर्म लेबर। सो डॉक्टर साहब ये सेम स्टोरी है, सेम कहानी है जो गेस्टेशनल डायबिटिक की थी, बस उसमें जी ओरल बिल्कुल। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करना था हमने। यहाँ यस पे तो वो बिल्कुल नॉन डायबिटिक है ना, तो हमने बिल्कुल ओरल ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करके हमने क्या कारनामे अंजाम देने हैं। एनीवे बहरहाल टेस्ट तो हमने करना ही होगा। अच्छा, फिर ब्लड प्रेशर वगैरह भी दे लिया, और हमने क्या करना है कि उसकी जो मेडिकेशन वो ले रही है ना, उसको हमने चेंज करनी जी है नॉन टेट्रोजेनिक। देखिए डॉक्टर साहब, अगर वो ले रही है सल्फोनाइल यूरेस या कोई भी अदर हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रही है ना, उसको हमने चेंज करना है मेटफॉर्मिन पे। और मेटफॉर्मिन जी से अगर कंट्रोल नहीं है तो इंसुलिन पे देना है, और हमने देखना है कि वो ले क्या रही है, जिस पे उसका कंट्रोल हम वो कर लेंगे। मगर ओरल हाइपोग्लाइसेमिक वो हमने देखनी ज़रूर है उनको, क्योंकि हमने चेंज करना है, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, जी वो जी हमने देख लिया। अब क्या होगा कि जो हम जो अब आगे क्या होगा कि बेबी को अब मदर की और बेबी की मॉनिटरिंग होगी। तो बेबी की जो मदर की जो मॉनिटरिंग होगी वो क्या होगी, उसके ब्लड शुगर का कंट्रोल होना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, वही वाला ब्लड शुगर का कंट्रोल है जो पहले था, 7 दफ़ा, 7 दफ़ा होता है। ठीक। अब जो RCOG वालों का है ना, वो नहीं चेक करते, वो कहते हैं बस पोस्ट प्रेंडियल कर लो। मगर अगर आपके पास ओके। प्री प्रेंडियल आता है, 7 टाइम अगर आता है, तो प्लीज़ आप नीस से कंफर्म कर लीजिएगा ये नीस वालों ने क्या लिखा है, ठीक है। जी जी मगर मेरे वाली जो जगह है ना, हम तो हमारे लिए ये है। अच्छा, अब क्या होता है कि जो जो भी इसकी अब वो क्या हो गया, ऑब्स्टेटिकल की हम एग्ज़ामिनेशन करेंगे। अब डायबिटिक की मैनेजमेंट कैसे होगी डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी में, ठीक है जी। डायबिटिक की क्या होगी, हमने वो देखना है, इसका वही वाला पोस्ट प्रेंडियल प्री प्रेंडियल 7 टाइम्स हमने देखना है। उसकी वैल्यू आपके सामने, ठीक। सेम स्टोरी है डॉक्टर साहब, जी गैस्ट्रेशनल डायबिटिक की चेंज नहीं है। वही फास्टिंग है, थ्री ठीक। पॉइंट फाइव टू फाइव है, और लेस देन जी 7 है पोस्ट प्रेंडियल। और हीमोग्लोबिन A1C जो है ना, उसका जो लेवल है एज मच एज लो होना चाहिए। अगर उसका हीमोग्लोबिन A1C मोर देन 10 आ गया, तो प्रेगनेंसी इज़ नॉट अलाउड, बिकॉज ओके। उसको हाई रिस्क है कॉन्जेनाइटल जी टेट्रोजेनिक एब्नॉर्मलिटीज़ का, बेबी को भी और मदर को भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो ठीक। 10 जो होता है ना, वो लिमिट होता है, उस पर प्रेगनेंसी को कॉन्ट्राइंडिकेशन कर देते हैं, पेशेंट को ठीक। समझा देते हैं। अच्छा, अब ग्लूकोज की टेस्टिंग हमने कर ली। अब हमने कर ली कि उसको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है। सेल्फ मॉनिटरिंग कहलाती है ना वो 7 दफ़ा, जी जी वो जी सेल्फ मॉनिटरिंग करना है। एवरी ट्राइमेस्टर में उसका हीमोग्लोबिन A1C देखना है। एवरी ट्राइमेस्टर में उसको हमने अभी आगे और बात करेंगे, मगर एवरी ट्राइमेस्टर में हीमोग्लोबिन A1C देखना है। और हाइपोग्लाइसीमिया अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है तो उसके साइन एंड सिम्टम हमें बताने हैं उसके घर वालों को, कंट्रोल जी करने के लिए। बस ये इतना काफ़ी होगा। अच्छा, अब पेशेंट को ये भी बताना है कि पुअर अगर ग्लाइसेमिक कंट्रोल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बेबी को जो इंक्रीज रिस्क हो जाएंगे एबनॉर्मलिटीज़ के, ओके। मदर को हाइपरग्लाइसीमिया जी मोस्टली जो होता है ना, अगर नहीं कंट्रोल है तो जी हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है तो फिर उसको जो होता है ना, क्या नाम है, हाइपरग्लाइसीमिया अलग प्रॉब्लम उसके शुरू हो जाते हैं। वो वाले क्या नाम है इसको, क्या कहलाता है, कीटो एसिडोसिस में चली जाती है। तो इसलिए ये कंट्रोल करना है। इंसुलिन की वही वाली जो रिक्वायरमेंट है टाइप 2 डायबिटीज़ में, जो है ना, इंसुलिन जी इंसुलिन देते हैं। अगर वो इंसुलिन की रेजिस्टेंट है, तो
तो हम ज़्यादातर फिर क्या करते हैं, इसको पंप पे ले जाते हैं। ओके जी, ओके जी। जी अगर अगर फूड हम उसको क्या कहते हैं, वो जो डाइटिशियन है उसके पास भेजेंगे, फिजियोथेरापिस्ट के पास हमने उसको भेजना है, क्योंकि फिजियोथेरापी भी वो करे। फिजियोथेरापी में क्या, फिज़िकल एक्टिविटी, सॉरी, फिज़िकल एक्टिविटी क्या होता है, 15 मिनट फर्स्ट, देन 13 मिनट की वॉकिंग कर ले तो बहुत है, या घर का भी काम कर ले तो बहुत है। ठीक है जी। फिर ये इसके बाद क्या ठीक होता है, इसको मेडिकेशन हमने चेक कर लिए कि कौन सी लेगी मेडिकेशन, ठीक है ना। अच्छा, जी मेडिकेशन की बात हो गई, जो अगर जो मेडिकेशन ले रही है तो हमने उसको कंटिन्यूस करनी है। प्रेगनेंसी है तो फिर भी कंटिन्यूस ठीक करना है, मगर कंटिन्यूस कौन सी करेंगे, कि जो टेट्रोजेनिक नहीं हो, यही मतलब बात याद रखना है आपने। ठीक है जी। जी टेट्रोजेनिक नहीं है, और ये जो मैंने जी एक्टिविटी बताई थी ये तो करनी है, इसको तो छोड़े ही हमारा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि डायबिटिक के हम कॉम्प्लिकेशन क्या है। डॉक्टर साहब, एग्ज़ाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायबिटिक की कॉम्प्लिकेशन, और मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जी जो होती है ना डायबिटिक की, और तो दूसरी होती है, मगर जो मोस्ट डेंजरस कंडीशन है ना, रेटाइनल असेसमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसलिए करते हैं कि एवरी ट्राइमेस्टर में रेटाइना को देखते हैं हम, क्योंकि अगर रेटाइना एक दफ़ा ख़राब हो गया ना तो दोबारा बनना मुश्किल हो जाता है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, तो आँख ही बाय बाय हो जाती है। जी तो हम रेटाइनल असेसमेंट करते हैं, ठीक रीनल की असेसमेंट करते हैं। देखिए, रेटाइना को तो हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भेजना, बात ख़त्म हो गई। अब हम जी रीनल की असेसमेंट कैसे करते हैं, यूरिया एंड इलेक्ट्रोलाइट्स करके भेजेंगे, और अल्ट्रासाउंड करेंगे कि भाई कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है किडनी जी विडनी की, बस इतना सा काम, इससे ज़्यादा नहीं। कार्डियोवैस्कुलर हम ऑलरेडी देख रहे हैं, उसका ब्लड प्रेशर जो चेक करते हैं उससे हमें पता चल जाएगा, यूरिन जी प्रोटीन का पता चल जाएगा, बस। और जो ये जो कीटोन जो होते हैं ना, कीटोन के लिए हमने उस पेशेंट को, जो भी कोई पेशेंट है उसको हमने सिखाना है कि देखो तुम्हें ये प्रॉब्लम, हाइपरग्लाइसीमिया, डिजीनेस हो जाएगी, ब्रेथिंग तुम्हारी शैलो हो जाएगी, या तुम्हारी ब्रेथिंग में बदबू सी आने लगी, पर्टिकुलर कीटोन की स्मेल होती है ना, अगर वो आ रही है जी तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर इमीडिएटली। ओके। और वो जो तुम्हारा जी पार्टनर है, पार्टनर हैज़ टू हेल्प टू गिव हर द मेडिकेशन, दो शी विल नॉट गो इन दैट कोमा। ये भी हो गया ओके हमारा। अच्छा, फिर क्या होता है, थायराइड की इनकी सबकी असेसमेंट मैंने आपको बता दी। अब ऑब्स्टेट्रिकल असेसमेंट मैनेजमेंट क्या होगी, देखिए डॉक्टर साहब, उसमें क्या होगा कि अनकम्प्लिकेटेड जो प्रेगनेंसी होगी ना, जी अनकम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब उसमें कोई हाइपरटेंशन नहीं है, उसको डायबिटीज़ कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम, तो अगर वो जी वाली अनकम्प्लिकेटेड है ना डॉक्टर साहब, तो हमने पहले फीटल की सर्विलेंस, सॉरी वो मैं भूल गई, फीटल की जो सर्विलेंस पहले तो हमने करनी थी, वो पहले विजिट पे आई थी ना, तो हमने कंफर्मेशन करना था वाइबिलिटी ऑफ द फीटस, फिर दूसरा अल्ट्रासाउंड जो करेंगे, जी एनाटॉमिकल स्कैन, और थर्ड ट्राइमेस्टर में जो हम जी उसका स्कैन करते हैं, वो जो है ग्रोथ स्कैन चल रहे होते हैं, ये सारा ग्रोथ में आ जाता है, ठीक ग्रोथ स्कैन। और जो जो टाइमिंग है वो तो आपको हमने बता दिया। अब इसमें डिलीवरी की बात आती है। अच्छा, अगर जी देखिए बेबी बड़ा है, अगर आइडेंटिफाई हमने कर लिया है कि मैक्रोसोमिक बेबी है, तो डॉक्टर साहब जी उसको हमने उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है, असिस्ट करना है उसको, और अगर उसका पेल्विस काबिल नहीं है कि बेबी पैदा कर सकते हो तो सेक्शन पे जाएगी, अदरवाइज शी डोंट नीड इट, दैट्स ऑल। ठीक ये इतना काफ़ी हो गया। अच्छा, इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होती है डॉक्टर साहब, सब में पहले कॉम्प्लिकेशन होती है प्री एक्लैम्सिया एंड प्री टर्म लेबर, ये डॉक्टर साहब दोनों आपको याद रखने हैं नाम। ओके जी। जी ये वाले इसके दो कॉम्प्लिकेशन है बस डॉक्टर साहब, ये। अब इसकी मेडिकेशन मैंने बताई ना, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो है ना वो जो मेटफॉर्मिन वगैरह वो चेंज करेगा, मगर इंसुलिन तो इंसुलिन है, जी दैट्स ऑल। और इसमें जो बेबी जी होता है ना, नॉट मोर देन फुल टर्म से ज़्यादा नहीं जाता बेबी। अच्छा, इसमें ठीक मसला ये होता है कि जो इंसुलिन अगर वो टैबलेट पे है, तो फिर अगर हम इसको लेबर में देखें डॉक्टर साहब, वही लेबर का क्वेश्चन आपने याद रखना है, तीनों में एक ही है, सेम है लेबर का, कोई फ़र्क नहीं है। जी लेबर में यही है कि पेशेंट को हमने स्लाइडिंग स्केल करना है, ठीक है, ये याद रखिएगा, जी 1 आवरली जी जी स्लाइडिंग स्केल होता है।
अच्छा, वो क्या मतलब हुआ स्लाइडिंग स्केल का? देखिए, इंसुलिन हम 5% डेक्सट्रोज होती है ना, उसमें हमने डालनी होती जी है। जी कितने यूनिट डलेंगे तो डॉक्टर साहब वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या कैलकुलेट करके डालता है। ठीक है, तो जी इस जी वजह ठीक। से जो 1 आवरली हम करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट शी कैन हैव अ 1 आवरली दिस मच इंसुलिन डायरेक्टली। दैट्स ऑल। इतना हमें पता चल ओके। गया, ये दो हमने करना है। डॉक्टर साहब आज का ये इतना ही होगा। और इसके जो मैंने एमसीक्यू है ना, ये हमारा ग्रुप ख़राब होने से पहले मैंने ढेरों ढेरों डाले थे। तो अभी वो मुझको खुद को ठीक। वो एमसीक्यू नहीं मिल रहा है। जब भी तो मुझे नहीं मिल रहा है, वो जी मैंने डाले थे, फिर कारनामे तो आपको पता है क्या होते हैं। तो वो मुझे जी मिलते जी हैं तो ठीक है। फिर मैं नहीं तो फिर वो ग्रुप में उसको कहाँ ढूंढूंगी या मुझे नहीं पता। उसको ढूंढ के तो फिर ठीक। मैं करती हूँ, वो जी जी डालती हूँ एमसीक्यू। तो कल आपके पास जी टाइम है? जुम्मा है कल, तो आपके पास जी टाइम जी है? बिल्कुल। है। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा जी करते हैं, बिल्कुल। ज़रा देर से कर लेंगे, 8 बजे। क्योंकि यहाँ पर जो अजान है ना, अजान का जो टाइम है ना, जी 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 एग्जैक्ट आपके पढ़ने वाला टाइम है। तो जी इस ठीक है, कोई वजह से मसला नहीं, मैं 8 बजे। गायब मैं ज़रा फिर देर करती हूँ, तो 8:40 या 50, नहीं तो 8 बजे कर लें। कल तो जुम्मा। इंशाल्लाह 8 ओके। बजे ठीक है। हाँ, कल 8 बजे कर लें। आपको प्रॉब्लम तो नहीं है? आपके बच्चों की घर की छुट्टी तो नहीं नहीं है? नहीं, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल भी कल नहीं। करते हैं, एमसीक्यू भी कल कर लेंगे सारे। और कल जी फिर इसके बाद ये टाइप 1 डायबिटीज़ का कुछ भी नहीं है, छोटा सा बताना है, वो मैं बता दूंगी। नहीं तो रिकॉर्ड जी ठीक। करके हम इसको लगा लेंगे। जी ठीक। आई होप मैंने इसको क्या कर दिया है डॉक्टर साहब, ठहर। ये तो चल तो रही है रिकॉर्डिंग, अब क्या प्रॉब्लम हो गया है? आई डोंट नो एनी प्रॉब्लम नहीं। रिकॉर्डिंग। ओके, चले फिर देखते हैं, इंशाल्लाह ताला वी विल डू इट। जी ओके जी। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह। हाफिज़।